لوحنا الدم خندا واستولوا الأغلينندا أين أيلا هيسئتم إن أيلو مودي جتا وتكئيا الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. ہر طرح کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، ہر طرح کی حمد و ثنا لائق و زیبا ہے اللہ رب العزت کے لیے، جو بڑا رحیم و کریم مہربان سارے کائنات کا خالق و مالک اور پالنہار ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، بزرگان دین، قابل احترام ماؤں اور بہنوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے میرے موضوع سے متعلق یا اس حوالے سے سورہ حج کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اور میرا موضوع ہے قربانی کے احکام و مسائل۔ چونکہ ابھی ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، کچھ دن ہم اس کے گزار بھی چکے ہیں، اور چند دنوں میں بقرعید، جسے ہم عید الاضحیٰ کے نام سے بھی جانتے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس عید سے بھی ہماری ملاقات کرانے والا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دوبارہ اس عظیم قربانی کے عمل کو ادا کرنے کے لیے اس خوشی کے دن کو دوبارہ ہمیں عطا کر رہا ہے۔ ہم اس پر جتنا بھی شکر اللہ کا ادا کریں گے کم ہے۔ الحمدللہ علی کل حال۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کا یہ بیان جو ہم سنیں گے اسے سننے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حج میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ہم نے ہر امت میں قربانی کو رکھا ہے تاکہ جو چوپائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے قربانی کے لیے مقرر کیے گئے ہیں اس کی تم قربانی دو اور اس پر تم اللہ کا نام لو۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب صرف ایک ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، لہذا تم اسی کے تابع رہو، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عاجزی اختیار کرنے والے ہیں انہیں آپ بشارت دے دیجیے۔
اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کے حوالے سے اس کی اہمیت کے حوالے سے بتایا کہ قربانی ہماری امت کے ساتھ ساتھ، اس امت کے ساتھ ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ ساتھ پچھلی امتوں میں بھی یہ قربانی اللہ کے جانب کے سے کی جاتی تھی، اور اس وقت بھی یہی حکم تھا کہ وہ اللہ کے نام سے قربانی کرے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ سنت کو زندہ رکھنے کا حکم دیا گیا، اور آپ کے ذریعے سے ساری امت تک یہ بات پہنچا دی گئی کہ جب بھی قربانی کا دن آئے، انسان قربانی کا اہتمام کرے اور اس پر اللہ کا نام لے، اور اللہ کے نام سے وہ اللہ کے راستے میں انہی جانوروں کو جو خاص اللہ نے بتائے ہیں جن میں قربانی دینا ہے، انہی جانوروں میں سے قربانی دے اور اس پر اللہ کا نام لے۔ قربانی جو کی جا رہی ہے، قربانی کرنے والے کی بات کہہ کر اللہ نے بتایا کہ یاد رکھو کہ تمہارا خدا، تمہارا معبود، تمہارا رب صرف ایک ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ قربانی صرف اللہ کے نام سے ہونے والی ہے، اب کسی اور کے نام سے کوئی قربانی نہیں ہوگی۔ اور دوسری چیز اللہ نے یہ بھی بتائی کہ لہذا تابع داری اور عاجزی صرف اللہ کے لیے اختیار کرنی ہے۔ آدمی قربانی کرتا ہے، ایک عبادت ہے۔ ہم عبادت میں نماز کو اگر آپ لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آدمی نماز میں تابع داری کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، جتنا چاہے اتنا دل سے اس کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ عبادت اللہ تعالیٰ قبول کر سکے۔ لہذا قربانی بھی ایسی عبادت ہے جس میں تابع داری ضروری ہے، اور اسی کا حکم اللہ نے اس آیت میں دیا ہے کہ جب آپ قربانی کرو تو مکمل اللہ کے تابع ہو جاؤ، اور پھر اگر آپ تابع ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، ایسی جو عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بشارت دے دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے۔ تو یہ ایک آیت ہے جس کا جو سورہ حج سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ قربانی کی اہمیت کے لیے آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کے ساتھ بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ جیسے ایک چھوٹی سی سورت قرآن میں ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کے لیے آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اس چھوٹی آیت کے اندر بھی دیکھیے اللہ نے قربانی اللہ کے نام سے کرنے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ میں نماز کا بھی اس میں ذکر ہوا۔ نماز جو فرائض میں سے ہے، ایسی خاص عبادت کے ساتھ اللہ نے قربانی کا ذکر کیا، اس سے بھی اس کی اہمیت ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ قرآن میں ایک اور جگہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس میں بھی اللہ نے اپنی زندگی موت کے ساتھ ساتھ اس بات کو کی اہمیت بتائی ہے کہ نماز جیسی عبادت کے ساتھ قربانی کو ذکر کیا ہے۔ اس سے اس کی اہمیت ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ لہذا قربانی ایک بڑی عبادت ہے، پچھلے امتوں میں بھی یہ تھی، اس امت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس بات کو بتایا گیا۔ تو ہمارا کام ہے کہ ہم اس قربانی جیسے عمل کو ہم ہمیشہ کرتے رہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج میں گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر 100 جانور قربان کیے تھے۔ عید کے دن 100 جانور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان کیے تھے۔ مطلب اس سے قربانی کی اہمیت بتانا مقصود ہے کہ کتنے جانور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن جانور ذبح کیے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی کر کے بتایا، اس کی اہمیت بتانے کے لیے
تو ये सारी बातें जो अभी मैंने आपके सामने बताई है, ये कुर्बानी की अहमियत को लेकर है। अब मैं उन चीज़ों की तरफ आपको लेकर जाऊंगा जो हमारी कुर्बानी के लिए अहम है। अब जो लोग कुर्बानी दे रहे हैं और जो कुर्बानी नहीं देने वाले हैं, दोनों के लिए ये सारी बातें हमारे लिए जानना ज़रूरी है। देखिए, एक चीज़ ये है कि पहले ये समझना चाहिए कि कुर्बानी करना ये वाजिब नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो इस्तिताअत है वो कुर्बानी ना करे, ऐसा नहीं है। हमारे माशरे में हम देखते हैं, एक आम मिसाल लीजिए आप, कि एक आदमी का रोज़ाना का खर्चा कितना होता है। एक महीने का अगर हम कोई गुटखा खाने वाला है, सिगरेट पीने वाला है, आम तौर से आप देखिए रोज़ाना 50-100 रुपये वो खर्च कर देता है। अगर महीने का हिसाब अगर 100 रुपये से ले जाएंगे 3000 रुपये हो गया, साल में 36,000 रुपये उसके हो जा रहे हैं। लेकिन जब कुर्बानी का वक्त आता है उसके पास 5,000 रुपये एक हिस्से में मिलने के नहीं रहते, लेकिन वही साल भर 36,000, 40,000, 50,000 उसके खुद ऐसे हराम काम के लिए होते हैं जो जायज़ नहीं है, हराम है। गुटखा खाता है, शराब पीता है, ऐसी चीज़ों में वो अपने पैसे को लगा रहा है। लेकिन कुर्बानी के टाइम पे वो आदमी खलाश है, उसके पास कोई पैसा नहीं है। हम अपने घरों में टीवी लगाए हुए हैं, एक घर में 1 से 4 मोबाइल हैं और बगैर नेट के वो मोबाइल मुर्दा है। अब उसके लिए नेट डालना है, कोई 200 का रिचार्ज कर रहा है, कोई 300 का कर रहा है, कोई 299 का कर रहा है। हर महीना आप ये करते देखिए कितना पैसा हो जाता है। 4-4 मोबाइलों में अगर आप महीना खर्चा कर रहे हैं तो 12 से 13,000 साल में अगर खर्चा हो रहा है सिर्फ ऐसी चीज़ के लिए जिससे हमें कोई हासिल नहीं है। लेकिन जब कुर्बानी की बात आती है, गरीब से गरीब आदमी के पास आज मोबाइल है, उसकी इस्तिताअत की अगर आप बात करेंगे, मोबाइल चला सकता है, घर चला सकता है, पैसा कमा रहा है, सब कुछ उसके पास है, लेकिन इसके बावजूद जब कुर्बानी की बात आती है तो मांगने लगते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हज़रत इब्न तैमिया रहमहुल्लाह का एक कौल है, वो बताते हैं अगर कोई ऐसा शख्स भी है वक्ती तौर पर अगर उसके पास पैसा नहीं है, अगर वो कर्ज लेके कुर्बानी कर सकता है, लेकिन उम्मीद है उसको इस बात की उम्मीद होनी चाहिए कि मैं बाद में इसको फेर सकता हूँ, वापस कर सकता हूँ कर्ज में, तो उसे चाहिए कि वो कर्ज लेके अपनी कुर्बानी करे। और जो लोग इस्तिताअत रखने के बावजूद कुर्बानी नहीं करते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फला युक़र्रिबन्ना मुसल्लाना, ईद के दिन वो हमारे ईदगाह में भी मना है, इस्तिताअत उसकी है, इसके बावजूद वो कुर्बानी नहीं कर रहा है। अब इस्तिताअत का मैं मफ़हूम आपको बता चुका हूँ अंदाज़न। अब हर आदमी अपना अंदाज़ा कर सकता है अपने अखराजात को लेकर, इसके बावजूद वो कुर्बानी दे रहा है या नहीं दे रहा है वो खुद अपना फैसला करे। लेकिन एक चीज़ जो मैंने बताई है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको इस अंदाज में किया, बाकायदा इसकी फर्जियत नहीं है। हज़रत अबू बकर वगैरह के बारे में आता, एक बार इन्होंने क़स्दन कुर्बानी नहीं की ताकि उम्मत को ये बात पता चले कि ये फ़र्ज नहीं है, ये वाजिब नहीं है। इसका मतलब ये मुस्तहब चीज़ है। जिसके पास इस्तिताअत है, अल्लाह ने जिसको माल दिया है, उसे चाहिए कि वो ज़रूर कुर्बानी करे और अल्लाह की कुर्बत हासिल करे, आजिज़ी इख्तियार करे, ताबेदारी इख्तियार करे। अब इसमें हिकमत क्या है? कुर्बानी की हिकमत ये है कि आदमी जब किसी चीज़ को अल्लाह के लिए पेश करता है तो उसके ज़रिए से उसके अंदर इताअत और फरमा बरदारी पैदा होनी चाहिए, ताबेदारी पैदा होना चाहिए, नरमी पैदा होना चाहिए। और खामोशी से एक पैगाम वो देता है कि जैसे मैं खामोशी से ये कुर्बानी अल्लाह के राह में ज़बा कर रहा हूँ, अल्लाह के नाम से ज़बा कर रहा हूँ, अगर वक्त आया तो ऐसे ही अपने जान माल हर चीज़ की कुर्बानी में मैं कुर्बान करने के लिए तैयार रहूँगा। ये हिकमत उसके अंदर पैदा होनी चाहिए। आज लोगों में बराए नाम कुर्बानी हो गई है, रिश्तेदार दे रहे हम नहीं दिए तो कैसा रहता, बाजू वाला दे रहा है हम नहीं दिए तो कैसा रहता, गरीब दे रहा है मैं तो उससे अच्छा हूँ मैं नहीं दिए तो कैसा रहता। ये सब चीज़ें अल्लाह ताला नहीं चाहता है। फलां की वजह से, उसकी वजह से, इसकी वजह से कुर्बानी इसलिए नहीं है। कुर्बानी की हिकमत ये है कि आप जो कुर्बानी अल्लाह के नाम से दे रहे हैं, इसके देने के बाद आपको हासिल क्या होने वाला है? तकवा।
आजिज़ी इख्तियार करना, ताबेदारी इख्तियार करना। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, लन यनाला अल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकि यनालुहु तक़वा मिनकुम। जो कुर्बानी हम करते हैं, जब उसका खून जो ज़मीन पे गिरता है, अल्लाह को ना वह खून ज़मीन अल्लाह को पहुँचने वाला है और ना उसका गोश्त अल्लाह को पहुँचने वाला है। अल्लाह ताला उससे क्या चाहता है? वलाकि यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह ताला चाहता है कि तुम्हारे इस कुर्बानी के ज़रिए से तुम्हारे दिलों के हालात अल्लाह ताला जानना चाहता है। कौन ज़्यादा डर से कुर्बानी कर रहा है, कितने इखलास से वो कुर्बानी कर रहा है, ये अल्लाह तबारक व तआला चाहता है। हिकमत ये होनी चाहिए और इसके ज़रिए से ये जज्बा पैदा होना चाहिए। जैसे आजकल माहौल है हमारा, हिंदुस्तान का माहौल है कि जहीं से भी, जहाँ पर भी, जैसे भी जब कुर्बानी की ज़रूरत पड़ती है तो मुसलमान आज पीछे हो जाते हैं। कुर्बानी सिर्फ जानवर ही की नहीं है, कुर्बानी अपने माल की भी है, अपने औलाद की भी है, अपने जायदाद की भी है और अपने जज्बात की भी है, अपने ख्वाहिशात की भी कुर्बानी होनी चाहिए। जैसे वक्त आएगा वैसे कुर्बानी देने की ज़रूरत है। ये शरीयत हमको हिकमत बता रही है। अगर आपकी कुर्बानी बराए नाम हो रही है या एक फॉर्मालिटी के लिए कर रहे हैं और ये आजिज़ी, ताबेदारी और इनके सारी तकवा, परहेजगारी पैदा नहीं हो रही है, तो ऐसी कुर्बानी अल्लाह को कबूल भी नहीं है। वैसे अल्लाह को ना गोश्त की ज़रूरत है ना खून की ज़रूरत है, फिर कुर्बानी करके फ़ायदा क्या है? कुछ भी फ़ायदा नहीं है। तो उससे फ़ायदा ये होना चाहिए कि अपने अंदर आजिज़ी पैदा हो, अपने अंदर अल्लाह का डर और खौफ पैदा हो। जैसे सारी इबादतों का मकसद अल्लाह का डर और खौफ है, कुर्बानी का मकसद भी डर और खौफ है। हम कुर्बानी इसलिए करेंगे क्योंकि हम अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह का हुक्म है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इसलिए हम कुर्बानी कर रहे हैं और इससे आजिज़ी हमारे अंदर पैदा होनी चाहिए। अब आइए कुर्बानी के कुछ और भी मसाइल हैं जिसके बारे में मैं आपके सामने बताता हूँ कि कुर्बानी के लिए जानवर जो हम लेते हैं वो तंदुरुस्त होना चाहिए। अहादीस के अंदर 4 बड़े ऐब बताए गए हैं कुर्बानी के ताल्लुक से, जानवर के ताल्लुक से। एक क्या है? वो जानवर जो बिल्कुल अंधा हो, उसका भी क्या है, उसको भी इख्तियार नहीं करना चाहिए। एक जानवर ऐसा है जो चल रहा है, लंगड़ा है, देख रहे हैं आप, इसके बावजूद फिर उसको लेके काट रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। देखने में कोई बीमारी उसके जिस्म पे मौजूद है, वो बीमारी हमको दिखाई दे रही है कि ये जानवर बीमार है, इसके बावजूद उसकी कुर्बानी करना ये भी गलत है। एक जानवर ऐसा है बहुत ही दुबला पतला लागर है, उसकी हड्डियां दिख रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे जानवर से भी मना फरमाया। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिसके सींग टूटे हुए होते हैं, उससे भी मना फरमाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आँख और कान को देखो कुर्बानी का जानवर लेने से पहले, यानी मतलब उसके आँख में कोई बीमारी है क्या, वो देख रहा है कि नहीं देख पा रहा है, या उसका कान क्या है। उस जमाने में ऐसा होता था कि जब जानवर मर जाते थे तो कुछ कानों को काट के मन्नत मांगी जाती थी। तो हो सकता है कि आज के वक्त में भी ऐसा हो रहा है, इसीलिए कटे हुए कान से भी परहेज करना चाहिए। उलमाए कराम इसमें थोड़ी बहुत सहूलत देते हैं कि थोड़ा बहुत कटा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर किसी खुदा के नाम से वो कान काटा गया है तो ऐसे जानवरों से बचना चाहिए। जो लंगड़ा है, जो अंधा है, जो बिल्कुल ही दुबला पतला हड्डी वाला जानवर है और जिसकी बीमारी वाज़ेह दिखाई दे रही है, ऐसे जानवरों से परहेज करना चाहिए। आदमी जो कुर्बानी देता है उनके लिए बात है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप आगे सुन्नत में देखेंगे तो अल्लाह सहाबाए कराम जब कुर्बानी का वक्त आता तो कुर्बानी के दिन कई दिन पहले ही जानवर खरीद लेते, उसे खिलाते पिलाते मोटा करते ईद के दिन कुर्बानी देने के लिए। तो ये सुन्नत को भी जिंदा करने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयबों के बारे में बताते हुए ला तज़बहु इल्ला मुसिन्ना, और वो जानवर ज़बा करो जो दांत वाला हो, जिसके दूध के दांत झड़ गए हो। जैसे अगर आप ऊँट में जाएंगे तो कम से कम 5 साल में उसके दूध के दांत झड़ते हैं, या गाय बैल में जाएंगे तो 2 साल में झड़ जाते हैं, बकरा बकरी भेड़ में अगर जाएंगे तो 1 साल में झड़ जाते हैं। अफजलियत क्या है? कम से कम उसके दूध के दांत झड़ जाए और जो उसके मोटे दांत जो होते हैं वो निकल जाए, ऐसा हटा के देख के जानवर को लिया जाता है। ये तरीका है जानवर खरीदने का।
बहुत से लोग जा रहे हैं, मार्केट में है जानवर, बोल दिया 1 साल का है, दांत नहीं चेक कर रहे उसकी लागरपन को भी चेक नहीं कर रहे। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना आ गया, व्हाट्सएप पे फोटो डाल दे रहे और पैसे भेज दे रहे, सुबह में ईद के टाइम पे जानवर आ जा रहा या शाम में लाके दे दे रहे। जब आने के बाद पता चल रहा कि इसके अंदर इतने नुक्स है। कुर्बानी करने वाला इतना कम से कम टाइम निकाले कि जिसकी कुर्बानी वो दे रहा है उस जानवर को जाकर देखे, उसको चेक करे। तो मुसिन्ना जानवर क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। और इसके अलावा ये भी चीज़ बताई कि जो सबसे बड़ा एक मसला है, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक ताबई ने सवाल किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आप कुर्बानी कैसे करते थे? उन्होंने कहा कि हम एक पूरी परिवार की तरफ से एक बकरी हम ज़बह करते थे और काफ़ी हो जाते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की बात बताई जा रही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में अगर किसी के पास एक बकरी की इस्तेदात होती, वो अपनी पूरी फैमिली की तरफ से दे देता था। ऐसे ही क्या है, उलमाए कराम बताते हैं, अगर किसी के पास इतनी इस्तेदात है, एक परिवार है 4-5 लोगों का, जितना भी है एक परिवार है, लेकिन उसके पास बकरी खरीदने की ताकत नहीं है, लेकिन अगर वो गाय के अंदर हिस्सा मिल रहा है या ऊंट में हिस्सा मिल रहा है, तो एक हिस्सा भी उसके पूरे परिवार की तरफ से काफी हो जाता है। गौर से सुनिए, बहुत से लोग क्या करते हैं, हिस्सा लेते हैं, लेकिन अब्बा की तरफ से, अम्मी की तरफ से और उनकी औलाद की तरफ से नहीं होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा एक बकरी पूरे खानदान की तरफ से काफी होती है, वैसे ही एक हिस्सा भी पूरे खानदान की तरफ से काफी हो सकता है। और इसका भी शरई सबूत है, मुस्लिम वगैरह, तिरमिजी वगैरह की रिवायतें इस ताल्लुक से मौजूद है। इसके अलावा क्या है, एक और बड़ा मसला जो कुर्बानी के ताल्लुक से हमारे सामने आता है कि जो हमारे मरहुमीन हैं, मर गए, अब उनके तरफ से क्या कुर्बानी कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। आप सीधी बात है, नहीं कर सकते। किसी भी मरहुमीन, चाहे वो कितना करीब ही आपका इंतकाल क्यों ना हो जाए, आपके वालिद साहब हो, आपकी वालदा हो, आपकी बीवी हो, आपकी औलाद हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में हजरत हमजा का शहीद हो गए। आपकी बीवी हजरत खदीजा, जिससे आप इतनी मोहब्बत करते थे, जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना सहारा दिया, माल से, दौलत से, वक्त से, हर चीज से सहारा दिया, उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चों का इंतकाल हो गया। बहुत रोए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मगर एक हदीस आप दिखा दो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी तरफ से कुर्बानी करे, नहीं। जो हदीस लोग पेश करते हैं कि मय्यत की तरफ से कुर्बानी के जायज़ होने के लिए एक दलील पेश की जाती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत की तरफ से कुर्बानी करे और उसके अंदर दुआ पढ़े कि ये मेरे और मेरी उम्मत की तरफ से है। क्या ये जुमले अदा करके हम कुर्बानी कर सकते हैं? क्या हमारी कोई उम्मत है? नहीं है। हम उम्मती हैं, हम उम्मती हैं, हमारी कोई उम्मत नहीं है। मैं मेरी तरफ से, मेरी बीवी की, मेरी उम्मत की तरफ से बोल के कुर्बानी कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी कोई उम्मत नहीं है। मैं खुद एक उम्मती हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ, और हमेशा क़यामत तक जितने भी पैदा होंगे सब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही उम्मती होंगे। तो इससे पता चलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमल किया था वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खास था, तो आपने वो अमल किया है। उसके बाद में आप कोई भी हदीस नहीं देखेंगे खुसूसियत से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया है। आज हमारे दरमियान में बहुत से तौहीद परस्त हजरात भी इस मामले में फंस जाते हैं और समझते हैं कि भाई मेरे तरफ से भी मैं दे रहा हूँ, एक बकरा अगर मैं अपनी फैमिली से दे रहा हूँ तो मेरे वालिद साहब की तरफ से एक हिस्सा दे देता हूँ, गरीबों में बांटूंगा मैं। लेकिन तरीका गलत हो रहा है, जिस चीज का सबूत नहीं है आप वो काम कर रहे हैं, इसलिए वो कबूल होगा नहीं, ना उसका हक, उसका फायदा उनको पहुंचने वाला है। पहले अपने तरफ से, ऐसे भी घराने मौजूद है, मेरे सामने ऐसे भी सवाल आए, एक हजरत क्या है खुद की कुर्बानी नहीं कर रहे लेकिन उनके माँ बाप की कर रहे हैं, जो मरहूमीन है, खुद की नहीं कर रहा, वो उसका परिवार जिंदा है, उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, उनकी नहीं कर रहा, माँ बाप की तरफ से दे रहा है। अच्छा, एक चीज अच्छा याद रखिए, जब कुर्बानी जो करते आप, कुर्बानी करने में जो अगर आप एक जानवर लेके आ रहे हैं और अपने अपने अहलो अयाल की तरफ से कर रहे हैं तो आप उस पर दुआ पढ़ते हैं, बहुत आसान दुआ है, किसी मौलवी वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है कुर्बानी करने के लिए।
नमाज पढ़ के आके लोग देखते रहते, काटने वाला जानवर, काटने वाला कोई आदमी मिल जाए बोल के। बहुत आसान दुआ है, बैठे बैठे अभी याद कर सकते, बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर, बस। सही मुस्लिम में, सही बुखारी में, अहादीस में इतनी ही दुआ मौजूद है। अगर आप अबू दाऊद वगैरह की किताबों में जाएंगे, इन्नी वज्जातु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरा समावाति, लंबी दुआ है मौजूद। और आप जब चीज आसानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं कि इससे भी आपकी कुर्बानी की दुआ मुकम्मल हो रही है, तो मुश्किल में क्यों जा रहे हैं आप? बैठे बैठे ये दुआ याद कीजिए, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। ये किसको याद नहीं है? किसको याद नहीं है? अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी व मिन अहली अन्नी व अन अहली बैती। इतनी दुआ है, किसी से आप पूछ भी सकते हैं, मालूम भी कर सकते हैं। अब इसके लिए बड़ा परेशानी हो रही है दुआ के लिए, इतनी दुआ, क्योंकि इसको इतनी बड़ी दुआ याद नहीं रहती है। अब कट करने के लिए परेशान हो, खसाब भी खड़ा हुआ रहता, इन्हें भी इंतजार करता रहता, मुल साहब वहाँ काट रहे, अब आज तक उनके आधा घंटा हो जाता काट काट के आए तक। तो ऐसा मत कीजिए, बहुत बहुत आसान दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। और अगर किसी 7 हिस्सों में अगर आप जा रहे हैं, तो वहां पर आपका नाम रहेगा, और उस नाम के साथ में अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन फला मिन फला मिन फला मिन फला बोल के 7 नाम लिए जाते हैं। अच्छा, ये जो 7 लोगों की जो कुर्बानी हो रही है, उसमें भी एक चीज अहम है, याद रखिए। आप जिन लोगों के साथ हिस्सा मिल रहे, उनको तहकीक कीजिए कि उसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि मुशरिक है। बहुत गौर से सुनिए मेरी बात। अब मैं एक जानवर लेके आ रहा हूँ, उसमें 7 हिस्से, पूरे मेरे खानदान के 6, एक ऐसा है मैं बाहर के आदमी को दे दिया, लेकिन इत्तेफाक से वो मुशरिक निकल गया, तो क्या वो मुशरिक का हिस्सा मेरी कुर्बानी के साथ में मिल सकता है? नहीं, आपकी कुर्बानी भी जायज नहीं होगी। मोटी मिसाल आप समझ सकते हैं, एक ड्रम भर के दूध है, ज्यादा है, लेकिन एक पेशाब का खतरा उसमें गिर गया, मिलावट हो गई, दूध का कलर नहीं बदला, उसका मजा नहीं बदला, लेकिन क्या आप उसको पिएंगे? फिर अल्लाह के सामने आप मुशरिक की कुर्बानी को अपने साथ में मिला के कैसे दे सकते हैं? आप अल्लाह कैसे कबूल कर सकते हैं? बात समझने की है। अपने कुर्बानी में जब आप देखेंगे हिस्से मिलेंगे, अब जो लोग मुशरिक होते हैं, अल्लाह ताला ने तो अंबिया को डांट दिया है, इसमें उनको भी धमकी दे के रखा है, लइन अशरक्ता ला यहबितन्ना अमलुक। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी शिर्क करेंगे, आपका अमल भी मैं बर्बाद कर दूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला बता रहा है। तो अगर हमारे अमाल में ऐसे मुशरिकों की चीज अगर मिल जा रही है, आप जिसके बारे में जानते हैं वाज़े तौर पर कि ये शिर्क करता है, और इसका शिर्क की बिना पर क्या है, ये आके हमसे मिल रहा है, तो उसकी वजह से हमारी कुर्बानी भी खराब हो सकती है, और वो भी नाजायज हो सकती है। अपने कुर्बानी को जायज रखने के लिए, महफूज रखने के लिए, उसके सवाब को महफूज रखने के लिए, उसको क्या है, मुवहिदीन के साथ मिलने की कोशिश कीजिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, 1-2 हिस्से ज्यादा जा रहे, पैसे ज्यादा गए, परवाह नहीं, उसको अपने ही पास रखिए। आप अपने ही पूरा जानवर रख लीजिए, बाहर से मिल गया, मुशरिक के अलावा कोई आदमी नहीं मिल रहा आपको, तो मुशरिक को मत मिलाइए, कोई नहीं मिला परवाह नहीं है, और अपनी कुर्बानी को साफ रखिए। तो ये भी एक मसला है। उसके साथ में क्या है, कुर्बानी कर कितने दिन सकते हैं आप? 4 दिन है कुर्बानी के। अभी आप दूसरे मस्जिदों में आज खुतबा हो रहा होगा, वहां पर बोल रहे 3 दिन है। अय्याम तशरीक का लफ्ज हदीस में आता है। अय्याम तशरीक किसको कहते हैं? 11 जिलहिज्जा, 12 जिलहिज्जा, 13 जिलहिज्जा और 10 जिलहिज्जा के दिन हम लोग ईद करते हैं, जिस दिन जाकर नमाज पढ़ रहे हैं, फिर नमाज के बाद आके कुर्बानी कर रहे हैं, जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा अफजल कुर्बानी उस दिन की कुर्बानी बताई जो नमाज के बाद फौरन बंदा करता है। उस पहले दिन की कुर्बानी को अफजल बताया, लेकिन उसके बाद और भी 3 दिन आपको मौका दिया जा रहा है। 34 दिन का जब सूरज डूबने तक आप कुर्बानी कर सकते हैं, आपकी कुर्बानी जायज है। आप दिन में भी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं कुर्बानी। इसके लिए कोई वक्त, ये वक्त में करना है, ये वक्त में नहीं करना है, ऐसा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताया है। तो ये कुर्बानी के लिए अहम है कि हम 4 दिन तक करें, और बाकायदा लोग क्या है 3 दिन समझ के अय्याम तशरीक जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबा किराम से जो चीजें साबित है, उसमें भी कमी कर रहे हैं, और ये हक किसी को नहीं दिया गया है,
دین میں کچھ کمی بیشی کرنے کا حق آپ کو اور ہم کو، بلکہ کسی بھی انسان کو کتنا بھی متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو، دنیا میں کہیں کا بھی رہنے والا کیوں نہ ہو، کوئی کمی بیشی کی اجازت ہمیں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق 4 دن بتائے، وہی 4 دن ہم کو قربانی کرنا ہے۔ اب اس میں کوئی بھی امام آ کے یہ کہے کہ ایام تشریق میرے نزدیک 3 ہے تو آپ 3 کیوں مانیں گے، جبکہ اس امام کا امام کہہ رہا ہے کہ اس کے ایام تشریق وہ 4 دن ہے۔ 4 دن ہی رکھیے آپ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس پہ چلیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور جو اس کے آداب ہوتے ہیں، جانور کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آداب بتائے۔ جو قربانی کا جانور ہے، آپ جب اس کو ذبح کرنے جا رہے ہیں تو اپنے چاقو کو تیز کیجیے اور جانور کے سامنے مت تیز کیجیے۔ آج کل جو معاملہ چلتا ہے، ایک جگہ میں ہی کئی قربانی کے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، وہاں پر ایک کاٹ رہے ہیں، بازو میں اور ایک لگایا گیا ہے، پھر اس کو بھی کاٹ رہے ہیں، جانور دیکھ رہا ہے، بدا رہا ہے، اندر سے اس کو کیا درد ہو رہا ہے، کٹنے والا ہے وہ کیسا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کیا جائے، اپنے چاقو کو تیز کیا جائے، اس کو کیا ہے یہ پہلو پہ اس کو لٹایا جائے، پھر اپنا یہ ہاتھ سے اس کے منڈی کو پکڑنا اور اپنے پیر کو یا پھر اس کے گردن پہ رکھنا، ایک بائیں پیر کو پھر دائیں ہاتھ سے کاٹنا، یہ آداب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں قربانی کے جانور کے لیے۔ کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر قبلے کی طرف رخ کر کے کریں گے تو بہتر، اچھا ہے، پر ایسی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ قربانی کے جانور کے لیے آداب ہے کہ ہم جب قربانی کا جانور ذبح کر رہے ہیں تو وہاں پر یہ چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ اچھا، اور ایک چیز کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا طہور شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ ہم مسلمان ہیں، سب سے زیادہ صفائی ستھرائی طہارت کا ہمارے پاس مزاج ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا کہ ہم پیشاب کے خطروں سے بچتے ہیں، گندگی کہیں کیچڑ ہے تو وہ خطروں سے ہم بچتے ہیں۔ خالی پانی ہے، اچھا ہی پانی وہ نل سے بھی آ رہا ہوگا، باہر سے اچھا پانی آ کے جمع ہو گیا، اس سے بھی ہم بچ کے جاتے ہیں۔ یہ فلسفہ ہمارے پاس صفائی کا ہے، لیکن جس دن ہم قربانی کر رہے ہیں اس کی جو گندگی نکل رہی اٹھا کے کہیں روڈ پہ ڈال دے رہے ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے چیزیں جس کے ذریعے سے صفائی ستھرائی کا نام رہ جائے خالی، اور صفائی ستھرائی نہ ہو، وہ ہمارا شیوا نہیں ہے، بلکہ صفائی ستھرائی کی اہمیت ہے اور اس کو ویسے ہی کرنا چاہیے۔ اور ایک چیز جو غلط ہمارے اندر پیش آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کرنے کے بعد آپ کے پاس جو گوشت آئے گا، اس گوشت کو آپ کیا کریں گے، کتنے حصے بنائیں گے اس کے؟ کوئی بتا سکتا ہے کتنے حصے بنانا ہے؟ معلوم ہے کسی کو؟ ایک غریب کا بناتے 3، یہ بات غلط ہے۔ اگر آپ لوگوں کو بھی معلوم ہے 3 تو یہ بات غلط ہے۔ 3 حصے قربانی میں 3 حصے بنانے کا کہاں سے دلیل ہے؟ میں تو پورے احادیث پڑھ لیا، کہیں بھی دلیل نہیں ہے۔ جو روایتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ فَكُلُوا وَطِعِمُوا وَادَّخِرُوا، کھاؤ، کھلاؤ اور ذخیرہ کرو، اور اس کے علاوہ کیا ہے قانے والمعتر، بلکہ جو حدیث آتی ہے کہ جو خود بھی کھاؤ اور غریبوں کو بھی کھلاؤ۔ بس 2 ہی حصوں کی بات آ رہی ہے، ایک اپنا اور ایک دوسروں کا، بس اتنا ہی ہے۔ اب باقاعدہ لا کے 3 حصے کیے جا رہے ہیں، ایک ہمارا، ایک رشتہ داروں کا، ایک غریبوں کا۔ اب اس میں بھی نیت میں کھوٹ رہتا ہے، اپنا تھوڑا اچھا رہتا، رشتہ داروں کا اس سے تھوڑا وہ رہتا، اور غریبوں کا تو بیچاروں کا پورا چچڑے سے رہتے ہیں، جتنے چچڑے رہتے۔ آپ کبھی غریب جو باہر روڈوں پہ جاتے ہوئے ان کے بگونا کھول کے دیکھیے، گوشت ملا تو بولنا، چچڑے پورے اس کو ڈال دیتے، اچھا پورا اپنے پاس رہتا، تھوڑا بہت چچڑے لگے ہوئے تو رشتہ داروں کو جاتا۔ یہ فلسفہ ہمارے اسلام میں ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی روایتیں بتائی ہے اس سے صرف 2 چیزوں کی بات ہے، یا آپ اپنے پاس رکھیے گوشت کو کھائیے۔ 1 سال میں ایسا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے 4 دن میں گوشت ختم کر دو، عید ختم ہونے تک۔ پھر اس کے بعد اور 1 سال آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سال آیا تو صحابہ کرام پوچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
पिछले साल जैसा हमने गोश्त को 4 दिन में ख़त्म कर दिया वैसे ही ख़त्म करना है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, आप खाओ और ज़ख़ीरा करना है तो कर लीजिए। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब बचा कर रख सकते हैं, आप कबाब डाल सकते हैं, गोश्त का अचार बना सकते हैं, फ्रिज में उसको रख के बाद में खा सकते, इतनी छूट दी गई है। लेकिन साथ में हक किसका अदा करना है? आप रिश्तेदारों को भेजा रहे हैं, वो रिश्तेदार आपको भेजा रहे हैं। रिश्तेदारों को भेजना, इसके बारे में कोई खास रिवायत मेरे को नहीं मालूम है, लेकिन गरीबों को देने के बारे में है। जो आप अपने लिए पसंद कर रहे हैं गोश्त, वैसा ही गरीबों के लिए भी पसंद कीजिए देने में। जो आप खाना पसंद करते हैं गरीबों के लिए भी वही पसंद कीजिए। इसी को कहते हैं भाईचारगी, इसी का नाम है ईमान को मुकम्मल करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए कि जो आदमी अपने भाई के जो वो पसंद करता है वो अपने भाई के लिए पसंद करे, अगर नहीं कर रहा है तो उसका ईमान अभी मुकम्मल नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ों का एहतमाम करते रहना चाहिए, सफाई सुथराई। और सबसे खास बात क्या है? इखलास होना। कुर्बानी में क्या होना चाहिए? इखलास। आपकी कुर्बानी इखलास से खाली नहीं होनी चाहिए, वरना कबूल नहीं होगी। मैं 15,000, 20,000, 50,000, 1 लाख का बकरा खरीद के लेकर आऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मेरे अंदर इखलास नहीं है, कोई सवाब मेरे को मिलने वाला नहीं है। आप कितना भी बड़ा जानवर लेके आओ, कोई मसला नहीं है, लेकिन जब उसका सवाब आपको नहीं मिल रहा है तो फायदा क्या है ऐसे जानवर की कुर्बानी करने? मतलब इखलास का मतलब क्या है? लिल्लाहियत। आप जानवर लियज़्कुरुस्मल्लाह अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, अल्लाह ने कुरान की वो पहली आयत में यही बात बताई। आप अल्लाह के नाम से उन जानवरों में जो अल्लाह ने मुख्तस किए उनमें आप कुर्बानी कर रहे हैं और अल्लाह के लिए कर रहे हैं। तो अल्लाह के लिए जब हम कर रहे हैं, कुर्बानी में लाए, एक फोटो निकाल दिए, व्हाट्सएप पे डाल दिए, स्टेटस पे रख रहे, अब्बा क्या जानवर है, बहुत अच्छा जानवर है, रियाकारी, दिखावा। ये मकसूद है आज की कुर्बानियों से। मेरा जानवर इतना बड़ा है, तेरा कैसा है, मुकाबला आराई हो रही है। लोग एक दूसरे के जानवरों को देख के इश्क कर रहे, अब्बा तुम्हारा जानवर अच्छा है, इतना मैं इतने हजार के लाया, उतने हजार के लाया। ये सारी चीजें नहीं है, ये हमारी कुर्बानी को बर्बाद करने वाली चीजें हैं। कुर्बानी क्या है? अल्लाह के लिए कर रहे। आप अपने हलाल पैसों से जो आपको समझ में आता है, जितना अच्छा है, जितनी ज्यादा अल्लाह ने इस्तेताअत दी उतना अच्छा जानवर दीजिए आप, लेकिन लोगों को बता के नहीं, व्हाट्सएपों पे स्टेटस रख के नहीं, लोगों की तारीफ सुन के नहीं, लोगों में मारूफ हो के नहीं, शोहरत करके नहीं, रियाकारी दिखावा करके नहीं, मत कीजिए कुर्बानी को। क़यामत के दिन ऐसे अमाल मार दिए जाएंगे। वो शहीद बेचारा शहीद हो के भी जन्नत में नहीं जा रहा, एक आदमी कुरान पढ़ के भी जन्नत में नहीं जा रहा है। क्यों? इसकी वजह क्या है? वजह यही है कि दुनिया में कुरान पढ़ के लोगों से तारीफ चाह रहे थे, शहीद शहादत पा के भी लोगों से तारीफ चाह रहा था कि लोग मेरे को बहादुर बोलना, कारी समझना कि मेरे को वो है। मालदार माल खर्च करके भी जहन्नम में जा रहा है। क्यों? वो माल अल्लाह के राह में खर्च करता था, लेकिन दिखावा, लोग उसकी तारीफ करना कि मैं मालदार हूँ और मैं ये खर्च कर रहा हूँ। अल्लाह ने कहा कज़ब्ता, सबसे बोला कि अल्लाह तू का झूठा है, तू झूठा है, तू झूठा है, फिर निकाल के उनको जहन्नम में डाल दिया गया। हमारी कुर्बानियों को भी बर्बाद मत कीजिए। सिर्फ कुर्बानी में ही ये बात नहीं है, हर इबादत में ये बात है। हर इबादत में, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी इबादत कोई भी हो, आप इखलास के बगैर करेंगे अल्लाह कबूल नहीं करेगा। आप आज जुमा में यहाँ पर आए, अगर आप इसको फॉर्मालिटी के लिए आए तो ये आपकी नमाज अल्लाह को नहीं पहुंचेगी। अगर आप इस बिना पे आए कि जुमा का हुक्म है, उसके अहकाम है, उसके आदाब है, उसकी फजीलत है, उसकी अहमियत है, अल्लाह का और अल्लाह के नबी का हुक्म है, इसलिए मैं आया हूँ, मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं आ रहा हूँ, मैं 2 रकात नमाज पढ़ रहा हूँ, सजदा मार रहा हूँ, मैं रुकू कर रहा हूँ सिर्फ अल्लाह के लिए, किसी को दिखाना मकसूद नहीं है। अल्लाह ताला इस अमल को कबूल करता है। ऐसे ही हर इबादत में ये चीज होनी चाहिए। तो अपने कुर्बानियों से आप सफाई सुथराई का ख्याल रखें। ये जो चीजें चंद कुर्बानी के अहम मामला बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला जितना भी आज हमने कहा है और सुना है उस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।